آج ہم لائف ان دا یوکے کا ٹیسٹ نمبر 15 کریں گے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ والا جو ٹیسٹ ہے یہ ILR انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلیکیشن یا برٹش سٹیزن شپ کی اپلیکیشن کے لیے ضرورت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ B1 بھی چاہیے آپ کو۔ بس ایک بات سے سوری سمپل سی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ILR اور برٹش سٹیزن شپ اپلیکیشنز کرنی ہے تو آپ کو B1 اور لائف ان دا یوکے چاہیے، یہ دو ٹیسٹ۔ تو آج ہم کو کرتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے اور طبیعت کچھ خراب تھی، فلو وغیرہ بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے میں کچھ ٹائم سے یہ ٹیسٹ نہیں بنا سکا۔ اس وجہ سے آئی ہوپ کہ آپ کو زیادہ ڈسرپشن نہیں آئی ہوگی، لیکن بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ ٹیسٹ اپلوڈ کریں۔ کچھ لوگوں نے تو دھمکیاں بھی دیں کہ آپ کریں گے کہ یا ہم کسی اور چینل پہ چلے جائیں، تو پھر ہم ان دھمکیوں سے ڈر گئے اور آج ہم نے سوچا کہ جیسے بھی ہو ایک ویڈیو بنا لینی چاہیے۔ اینی ہاؤ، تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کی انکریجمنٹ کا۔ آپ لوگ میری ویڈیوز کو بہت لائک کرتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ ڈیمانڈ بھی کریں۔ تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس ٹیسٹ کے اندر 24 کوشچن ہوتے ہیں، اور یہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہے۔ آپ نے 18 کوشچنز کے آنسر ٹھیک کرنے ہیں، اور ٹوٹل ٹائم 45 منٹس ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک چیز اور بھی بتا دوں، کچھ لوگوں نے مجھے یہ پوچھا ہے کہ وہ انگلش پڑھ نہیں سکتے، ان کو پڑھنے کا پرابلم ہے۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے، دیکھیں پڑھنا تو کہیں نہ کہیں پڑھتا ہے، لیکن ایک آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ ٹیسٹ کے اندر جب آپ ٹیسٹ سینٹر جاتے ہیں تو وہاں پہ کمپیوٹر کے ساتھ آڈیو کا سسٹم بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہیڈ فونز دیے جاتے ہیں، اور آپ ان ہیڈ فونز کو یوز کر کے ایک آپشن چوز کریں گے جس میں وہ کوشچن آپ کے لیے ریڈ کرے گا، کیونکہ کچھ لوگ پڑھ نہیں سکتے، لیکن وہ جب ان کو یہ کوشچن پڑھا جاتا ہے سن کے ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آپ وہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ کوشچن آپ پلے کر دیں، کوشچن وہ پڑھے گا کمپیوٹر، پھر اس کے بعد جو آپشنز بھی پڑھے گا ون بائی ون جتنے بھی آپشنز ہوئے، تو پھر آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کو چوز کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ آپشن ایک ہے آپ کے پاس، آپ اس بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا ٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں، اور کوشچن نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ ان وچ انگلش کاؤنٹری از دا مانیومنٹ آف اسٹون ہنج لوکیٹڈ۔ اسٹون ہنج آپ نے دیکھا ہوگا، وہ پتھر سے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک سرکل بنا ہوا ہے، تو وہ کس کاؤنٹی میں ہے؟ تو ہمارے پاس آپشنز ہیں بیڈ فورڈ شائر، چیشر، ویلشائر اور کارن وال۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے، لیٹ می چوز دا پین، اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ یہ رہا، ویلشائر اس کی آنسر ہے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ کوشچن یوں بھی آتا ہے کہ ان وچ کنٹری از دا مانیومنٹ آف اسٹون ہنج لوکیٹڈ، پھر آپ کو کنٹریز دی جاتی ہیں، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ وہ پھر انگلینڈ میں ہے۔ میں یہاں پہ ای لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اگر نوٹس بنا رہے ہیں تو ساتھ ہی لکھ دیں۔ کنٹری اگر آ جائے تو انگلینڈ میں ہے، اور ویلشائر انگلینڈ میں ہے، تو یہ کاؤنٹی کا نام ہے۔ نیکسٹ کوشچن از واٹ از دا بیسٹ نون ورک فرام رابرٹ برنز۔ یہ جو رابرٹ برنز ہے یہ اسکاٹش سانگ رائٹر کہہ لیں، پوئٹ کہہ لیں، شاعر کہہ لیں، تو یہ وہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا چیز لکھی جس کے لیے یہ بہت زیادہ مشہور ہوا؟ اولڈ لینگ سن، یہ اسکاٹش لینگویج میں، ہیملٹ، یہ تو ظاہر ہے شیکسپیئر نے لکھا، روز بائی اندر نیم، یہ تو شیکسپیئر کی ہی رومیو اینڈ جولیٹ سے ایک لائن ہے، جارجس مارولس میڈیسن، تو یہ بھی کوئی اور رائٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ یہ رہا، اولڈ لینگ سن۔ آپ دیکھیں یہ اسکاٹ لینڈ کا ہے تو یہ تھوڑی سی اسکاٹش لینگویج میں ہے۔ اور یہ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب نیو ایئر ایو ہوتی ہے پوری دنیا میں، تو بیک گراؤنڈ میں نیو ایئر اس ٹائم پہ ایک گانا چلتا ہے، تو وہ اولڈ لینگ سن ہے اور رابرٹ برنز نے لکھا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ شاعر ہے۔ کوشچن
Which of the following crosses does not form part of the Union flag? Union flag आपको मालूम है यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग है, झंडा है, उसके ऊपर क्रॉसेज हैं। मैं यहाँ पे चले आपके लिए बना लेता हूँ, रफ सा ही होगा। एक इस तरह क्रॉस है, एक इस तरह क्रॉस है, और एक ऐसे है। हाँ, ऐसे भी है। ये अब बना। तो ये क्रॉसेस हैं, ये वाले क्रॉस, वो क्रॉस। तो कौन से कंट्री का क्रॉस नहीं है? इसमें कलर्स भी हैं, ठीक है। ये ब्लू लाइन आ रही है और साथ ही एक वाइट लाइन भी आ रही होती है, ठीक है। सो उसमें इंग्लैंड का क्रॉस भी है, उसमें स्कॉटलैंड का क्रॉस भी है, उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड का भी क्रॉस है, लेकिन उसमें ये वाला जो वेल्स का क्रॉस नहीं है, ठीक है। वेल्स के फ्लैग पे वैसे भी ड्रैगन है और ड्रैगन भी नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि वेल्स के कौन से कंट्री के का सिंबल यूनियन जैक पे नहीं है। इसको यूनियन जैक भी कहते हैं, यूनियन फ्लैग भी कहते हैं, ये जो झंडा है, ठीक है। सो आपको ये पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डे इज हैलोवीन सेलिब्रेटेड? ये तो अभी आपको फ्रेश होगा बिल्कुल, क्योंकि आपके घर पे भी बच्चों ने नॉक किया होगा चॉकलेट्स वगैरह के लिए, और ये पटाखे वटाखे भी आजकल चल रहे हैं, फायरवर्क्स हो रहे हैं। 31 अक्टूबर को हैलोवीन होता है, इसमें फायरवर्क्स चलते हैं और लोग आके आपके घर पे ट्रिक एंड ट्रीट भी करते हैं। सो 31 अक्टूबर को हैलोवीन चल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, who was the first British distance runner to win a gold medal in the Olympic Games in 10,000 meters? इसका मीनिंग ये है कि बरतानिया का वो कौन सा पहला जो एथलीट कह लें था, रनर कह लें, भागने वाला था, जिसने 10,000 मीटर की रेस में एक गोल्ड मेडल जीत लिया। जो हमारे पास मोफरा है, ब्रैडली विगिंस है, सर क्रिस होय है और डेविड वियर। तो ये हमारा आंसर है मोफरा, ये सोमालियन बॉर्न ब्रिटिश है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? फॉर सम स्कॉटिश पीपल हॉग मने इज अ बिगर हॉलीडे देन क्रिसमस। कुछ स्कॉटिश लोगों के लिए हॉग मने जो है वो क्रिसमस से भी बिगर हॉलीडे है, बड़ी, यानी बड़ा फेस्टिवल है आप कह लें। For some Scottish people, Hogmanay is bigger holiday than New Year's Eve. For some Welsh people, Hogmanay is bigger holiday than Christmas. For some Irish people, Hogmanay is bigger holiday. अब आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि हॉगमैनी जो है वो न्यू ईयर को कहते हैं, और ये स्कॉटिश लैंग्वेज में कहते हैं, स्कॉटिश लोग कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पहला आंसर है ये करेक्ट है, कि ये लोग इसको क्रिसमस से भी बड़ा त्यौहार समझते हैं न्यू ईयर को। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लाइट हार्टेड प्लेज विद म्यूजिक एंड कॉमेडी। हल्के फुल्के जो ड्रामे हैं लाइट हार्टेड, जिनमें बहुत हैवी किस्म का मटेरियल नहीं होता, उसमें म्यूजिक और कॉमेडी भी होती है, विच आर एंजॉयड बाय फैमिली ऑडियंसेस, जो फैमिली के साथ जाके देखा जा सकता है। ये अपनी फैमिली की बात हो रही है, दूसरों की फैमिली के साथ नहीं। एंड बेस्ड ऑन फेरी स्टोरीज एज नॉन, और ये फेरी स्टोरीज पे होती हैं। तो ये इनको क्या कहते हैं? चिल्ड्रंस प्लेस, पेंटोमाइम्स, हॉगमने एंड परेड्स। हॉगमने तो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया कि ये तो एक फेस्टिवल है, तो इसका करेक्ट आंसर है पेंटोमाइम्स। पेंटोमाइम्स से हल्के फुल्के ड्रामे होते हैं जो कि ईस्टर के करीब ये चलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8, which British actor was best known for his roles in various Shakespeare plays? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सा ब्रिटिश एक्टर था जो शेक्सपियर के प्लेज में अपनी एक्टिंग करने की वजह से मशहूर हुआ? सर लॉरेंस ओलिवियर, जोसेफ टर्नर, एंड्रयू लॉयड वेबस्टर, टिम रॉयस। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सर लॉरेंस ओलिवियर। तो आप इसमें ये भी देख लें, आप इसको यूं लिंक कर सकते हैं एक्सक्यूज मी, कि शेक्सपियर के प्लेस, ये भी एस के साथ स्टार्ट होता है, ये भी एस के साथ सर है, इसका भी स्टार्ट होता है। तो ये इस तरह आपको याद रहेगा कि ये सर लॉरेंस ओलिवियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द टावर ऑफ लंदन आफ्टर बिकमिंग किंग इन 1066? टावर ऑफ लंदन जो है ये किसने बनाया था जब जब वो 1066 में
किंग बना, या यूं कह लें 1066 में वो कौन सा किंग था जो किंग बनने के बाद उसने टावर ऑफ लंदन बना दिया। सो ओलिवर क्रॉमवेल, हेनरी द एट्थ, विलियम द कॉन्करर एंड हेनरी द सेवन। इसका आसान आपको तरीका बताता हूँ। ये देखें, टावर ऑफ लंदन कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3। जिसने बनाया है उसके नाम में भी 3 वर्ड्स होने चाहिए, विलियम द कॉन्करर। ये हम इस तरह के कुछ ना कुछ टेक्निक्स खुद ही सोच लेते हैं, आप हमसे बेहतर सोच सकते हैं। आप भी ऐसे कुछ ना कुछ अपने लिए लिंक्स बना लें। ये हमेशा से मैं कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आप उस वक्त क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ किसी न किसी तरह लिंक कर लें, तो फिर वो इजी हो जाता है। सो टावर ऑफ लंदन विलियम द कॉन्करर ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु सक्सीडेड डेविड कैमरॉन एज प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द रेफरेंडम ऑन द यूके's membership of European Union। पहले तो क्वेश्चन को समझें। Who succeeded David Cameron as Prime Minister? डेविड कैमरॉन के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना जब रेफरेंडम हुआ था यूके की मेंबरशिप का कि यूरोपियन यूनियन में रहे या नहीं रहे? आपको याद है डेविड कैमरॉन ने एक रेफरेंडम कराया था कि क्या ब्रेक्सिट में, ब्रेक्सिट वाला जो रेफरेंडम था कि क्या यूके को ब्रेक्सिट में यूरोप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए। तो वो डेविड कैमरॉन स्टेप डाउन हो गया और उसकी जगह कौन प्राइम मिनिस्टर बना? बोरिस जॉनसन, टेरेसा मे, गॉर्डन ब्राउन और लिज ट्रस। ये तो देखें, आपको पता है कि बोरिस जॉनसन टेरेसा मे के बाद बना, गॉर्डन ब्राउन तो बहुत पहले था, लिज ट्रस तो अभी अभी गई है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है टेरेसा मे। क्वेश्चन नंबर 11 है, who composed the suite of pieces themed around the planets and the solar system called the planets? इसका सिंपल सी बात यह है कि सोलर सिस्टम के बारे में एक म्यूजिकल कंपोजिशन, जो आप ये कह लें गाना कह लें, वो किसने लिखा बनाया? द एडवर्ड एल्गर, जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल, गास्टफ होल्स्ट या सर विलियम वॉल्टन। अभी हम इसके लिए भी यही फार्मूला लगा लेते हैं जो हम विलियम द कॉन्करर के लिए किया था कि ये 2 वर्ड्स हैं और इसको जिसने बनाया है उसके नेम में भी 2 वर्ड्स हैं, ये देख लीजिए। लेकिन आपने ज़रा सा ये भी देखना है कि ये ना होना कि उस वक्त किसी और के नाम में भी 2 वर्ड्स आ रहे हैं तो आप वो भी चूज कर लें या वो कर लें। तो आपने साथ साथ ये भी याद भी रखना है, ठीक है। क्वेश्चन 12 जो है वो who was what was the population of UK in 1998? 1998 में यूके की आबादी कितनी थी? 40 मिलियन, 50 मिलियन, 55 मिलियन या 57 मिलियन? तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 57 मिलियन है। इस तरह के क्वेश्चन बस आप याद ही रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स? 2 बातें हैं इसमें। हाउस ऑफ कॉमन्स वहां पे जहां पे एमपी बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, उस हाउस में चीफ ऑफिसर कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो आपको ये एकदम से सोच आती होगी कि हाँ जाहिर है प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीत के पूरी मुल्क को चलाता है तो वही होगा। ऐसा नहीं है, आंसर द स्पीकर है। स्पीकर जो होता है ये एक किस्म का हाउस का इंचार्ज होता है। तो आपका ये आंसर है। 14, What characteristics the British Constitution? बरतानिया का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी क्या खास बात है? इट वॉज रिटन बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर ने लिखा। आप देख लें ये आंसर कितना नॉनसेंस है। अब इट वॉज रिटन बाय द प्राइम मिनिस्टर, अब कौन से प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है कोई पता नहीं है, ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है। इट वॉज रिटन बाय द क्वीन, क्वीन लिख सकती है भाई, अब तो वैसे भी फोर्थ हो गई है, बट क्वीन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख सकती। इट इज नॉट रिटन डाउन इन एनी सिंगल डॉक्यूमेंट एंड देयरफॉर इट इज डिस्क्राइब्ड एज अनरिटन। ये किसी भी जगह पे लिखा हुआ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नहीं है, यानी एक बुक के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इसको अनरिटन कहते हैं। इट वॉज रिटन बाय हेनरी द एट्थ। सो इसका करेक्ट आंसर ये रहा कि बरतानिया का जो कानून है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अनरिटन है। क्वेश्चन नंबर 15,
how old was Queen Victoria when she became queen in England in 1837? ये आंसर याद रखना बहुत आसान है आपके लिए, मैं अभी बता देता हूँ आपको। जब 1837 में क्वीन विक्टोरिया जब क्वीन बनी थी तो उसकी एज क्या थी? अ वीक ओल्ड, 4 years old, 20 years old, 18 years old। तो आप ये देखें, आप इसको यूं याद रखेंगे, 18 से हमने ये इसको लिंक कर दिया, ठीक है, तो वो 18 ईयर्स की थी। 1837 में वो 18 ईयर्स की थी। बस आप इसके पहले दो वर्ड्स याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट? ये तो बहुत आसान है, खासकर जिन लोगों की शादी हुई हुई है उनके तो झगड़े होते रहते हैं, तो झगड़ों वाली बातें तो उनको एकदम से याद रहनी चाहिए ना। सो द क्वेश्चन इज कि वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई थी? 1912, 1914, 1942 या 40? तो इसका आंसर है 1914, 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी पहली बार। 17 है, हु फॉर्म्स द जुडिशरी? ये जो जुडिशरी होती है ये कौन बनाता है, किसको जुडिशरी कहते हैं? द जजेस कलेक्टिवली, यानी सारे जजों को मिला के जुडिशरी कहा जाता है। द मैजिस्ट्रेट्स कलेक्टिवली, मैजिस्ट्रेट्स को मिला के। द एमपीज कलेक्टिवली या टुगेदर। एमपीज को तो नहीं कहते, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट भी नहीं हो सकता, तो हमारा करेक्ट आंसर है जजेस। जजेस सारे मिला के जुडिशरी बनती है, ठीक है। तो आपने देख लिया जजेस जे से स्टार्ट हो रहा है, और जो आंसर में भी सिर्फ वही लोग मिला के बनते हैं जिनका नाम जे से स्टार्ट हो रहा है। ये जजेस तो है लेकिन इसमें मैजिस्ट्रेट भी है, तो मैजिस्ट्रेट तो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जे वाला चाहिए। नंबर 18, Which of the following is a musical venue located in London? क्वेश्चन का मतलब ये है कि लंदन के अंदर ये इन चार में से कौन सी जो बिल्डिंग है जिसको जहाँ पे म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं? द O2, ग्लासटनबरी, द डोम, द फ्रिंज। तो करेक्ट आंसर है द O2, या इसको द O2 एरिना भी कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे म्यूजिकल फेस्टिवल्स होते हैं, जहाँ से बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े फेमस किस्म के सिंगर वहाँ पे फिर फंक्शंस होते हैं। ओके, हु डायरेक्टेड द मूवी द किलिंग फील्ड्स इन 1984? ये जो द किलिंग फील्ड्स है ये एक फिल्म है, ठीक है, या मूवी कह लें, फिल्म कह लें, जो आपका दिल करे कहें। ये किसने बना डायरेक्ट की है? ये 1984 में बनी है। रोलैंड जोफे, ह्यू हडसन, केविन मैकडोनाल्ड या निकोलस रोग? सो इसका करेक्ट आंसर है रोलैंड जोफे। द किलिंग फील्ड्स उसने बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two of the following castles are located in Scotland? इन दोनों में चारों में से कौन से दो कासल्स जो हैं वो स्कॉटलैंड में हैं? कॉनवे कासल, कैनरफोन कासल या क्रेट्स कासल या इनवेरी कासल? सो हमारे पास ये बड़े मुश्किल नाम है। ये वाले दो कासल्स जो हैं ये स्कॉटलैंड में हैं, ठीक है, तो आपने इनको याद। 21, which battle signified the end of wars of roses? ये मुश्किल क्वेश्चन है बट इसका आंसर बहुत आसान मैं आपको बताता हूँ। ये जो वॉर्स ऑफ रोजेस हुई थी, ठीक है, इस जंग की वो आखिरी कौन सी मार्का था, जंग था जिसके बाद ये जंग खत्म हो गई, ठीक है, यानी कि कौन सी बैटल के बाद वॉर्स ऑफ रोजेस खत्म हो गई? द बैटल ऑफ एजनकोट, द बैटल ऑफ बॉस्फोर्ड फील्ड, द बैटल ऑफ बैनकबर्न, द बैटल ऑफ मास्टन मोर? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये रहा, द बैटल ऑफ बॉस्फोर्ड फील्ड। अब आप इसको, मैं आपको एक लिंक बताता हूँ इसको। वॉर्स ऑफ रोजेस, ये देखें, रोजेस गुलाब के फूल को कहते हैं ना, तो गुलाब के फूल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप, ये फील्ड है, देखें किसी के नाम में भी फील्ड नहीं आ रहा, ठीक है, तो फील्ड, आप फील्ड को यूं कह लें कि जैसे ये खेत होता है, ओपन जगह होती है ना, तो रोजेस बाहर खेतों में लगे होते हैं, घरों में भी चलो लगाए होते हैं, लेकिन हमने तो क्वेश्चन के लिए कोई लिंक बनाना है ना, तो आप ये देख लें कि रोजेस कहाँ उगते हैं, रोजेस खेत में उगते हैं, ओपन फील्ड में उगते हैं, तो जिसके नाम के साथ फील्ड आता है वही रोजेस का बैटल फील्ड लास्ट था। 22, which court deals with minor criminal offences in Scotland?
स्कॉटलैंड के अंदर माइनर क्रिमिनल ऑफेंसेस का मतलब है छोटे छोटे जो जराइम हैं, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, वो किस कोर्ट के अंदर उनका मामला चलता है, यानी वो किस कोर्ट में डील की जाते हैं। जस्टिस ऑफ द पीस कोर्ट, मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, शेरिफ्स कोर्ट, क्राउन कोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहा ये, जस्टिस ऑफ द पीस कोर्ट्स। नेक्स्ट, इफ एन एमपी डाइज और रिजाइन्स, अगर एक एमपी मर जाता है या वो रिजाइन कर जाता है, देयर विल बी अ फ्रेश इलेक्शन। तो उसकी सीट पर जहां से वो एम्प्टी हो गई है वहां पे फ्रेश इलेक्शन होता है, विच इज नोन एज, और उसे क्या कहते हैं, हैंडसेट, फर्स्ट पास द पोस्ट, बाय इलेक्शन, कोalition। उसको बाय इलेक्शन कहते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आंसर आपका पता चल गया, बाय इलेक्शन कहते हैं अगर कोई एमपी मर जाए या वो रिजाइन करके चला जाए। लेकिन हैंडसेट कहते हैं पार्लियामेंट की, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो सारी होती है ना, डिबेट, स्पीचेस, रिपोर्ट, उस पूरे की रिपोर्ट को हैंडसेट्स कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब होता है जब इलेक्शन होते हैं तो जो पहले ज्यादा वोट ले लेगा वो जीत जाता है। कोalition कहते हैं जब दो पार्टीज मिल के गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इसलिए इसमें ये डिस्कस कर दी, लेकिन आंसर ये रहा। लास्ट क्वेश्चन, a person who has not paid enough national insurance contributions, जिस आदमी ने नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस नहीं की, ठीक है, देखें जब आप जॉब करते हैं तो आप नेशनल इंश्योरेंस देनी पड़ती है, जिसने नेशनल इंश्योरेंस ज़्यादा नहीं पे की, विल नॉट बी एबल टू रिसीव सर्टेन कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट्स। उसको दो तरह के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वो कौन से दो तरह के बेनिफिट्स हैं? जॉब सीकर अलाउंस, अ फुल स्टेट पेंशन, मैटरनिटी अलाउंस या डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस। तो उसको जॉब सीकर अलाउंस और अ फुल स्टेट पेंशन नहीं मिलेगा। ये आई डोंट नो ये क्या है, आप इसको डोंट वरी अबाउट दैट। सो अ फुल स्टेट पेंशन और जॉब सीकर अलाउंस उसको नहीं मिलेगा। ये सारा कुछ हमने देख लिया। आपको अंदाज़ा भी हो गया कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। अगर जिन लोगों को पढ़ने का इशू है तो वो घर पे जब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कोई ऐसी वेबसाइट्स ढूंढें जहां से वो क्वेश्चन को रीड आउट किया जा सके, ताकि वो उनकी excuse me, अच्छी प्रैक्टिस बन जाए। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।